গোস্বামী ৰাজ্যত যিসকলে ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰিছিল সেইসকলে ঘৰ লাভ কৰিব 3,88,000 ঘৰ নতুনকৈ প্ৰদান কৰিব চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আজিৰ দিনটোত দেশৰ যিগৰাকী গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান অসমত উপস্থিত হৈছে তেখেতে কৈছে যে যাৰ ঘৰত বাহন আছে সেইসকলেও চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব আমি সবিশেষ তথ্য জনাম অসমৰ সকলো দুখীয়া মানুহে লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ ঘৰত বাহন থাকিলেও লাভ কৰিব চৰকাৰী পকী ঘৰ মাহে 15,000 টকা উপাৰ্জন কৰিলেও হিতাধিকাৰী পাব ঘৰ অসমৰ জনতাৰ বাবে 3,88,000 পকী ঘৰ কথা ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ঘৰত দুচকীয়া বাহন থকা সকলেও পকী ঘৰৰ বাবে কৰিব পাৰিব আবেদন অসমৰ 35 লাখ দুখীয়া পৰিয়ালক ঘৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ লাভ কৰিব অসমৰ প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীয়ে অসমবাসীৰ বাবে 3,88,000 পকী ঘৰ ঘোষণা কৰা হৈছে অহা এপ্ৰিল মাহত দিবলগীয়া ঘৰৰ বাবে 16,000 কোটি টকা আবণ্টন দিয়া হৈছে নতুনকৈ যিসকলে সাৰ্ভেৰ বাবে আবেদন কৰিছিল আৰু পূৰ্বৰ সাৰ্ভে যিসকল ৰৈ গৈছিল সেইসকলেও চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব অনলাইন এপৰ জৰিয়তে হিতাধিকাৰীয়ে নিজেই পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব যে ঘৰৰ লিষ্টত নিজৰ নাম আহিছে নে নাই ঘৰ নোপোৱা সকলৰ বাবে পকী ঘৰ লাভ কৰাৰ বিশেষ সুবিধা লাভ প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্ৰী সহিতে আজিৰ দিনটোত কেন্দ্ৰীয় গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ বিশেষ সভাত নতুনকৈ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাই জিঅ' টেগ লাভ কৰিব আমি এই মুহূৰ্তত এক ডাঙৰ খবৰ লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো আপোনাৰ ঘৰত যদি বাহন আছে তেন্তে আপুনিও চৰকাৰী পকী ঘৰ লাভ কৰিব অসমত 3,88,000 নতুন পকী ঘৰ দিয়াৰ ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰীয়ে অসমৰ 35 লাখ দুখীয়া পৰিয়ালক ঘৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব আগন্তুক সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু বৰ্তমান প্ৰায় 4 লাখ 3,68,000 ঘৰ প্ৰদান কৰিব এপ্ৰিল মাহত প্ৰদান কৰিবলগীয়া ঘৰৰ বাবে 16,000 কোটি টকাৰ আবণ্টন দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা নতুনকৈ সাৰ্ভে কৰি ৰৈ যোৱা সকলৰ বাবে এই সুবিধা আনিব লগতে বৰ্তমান অৱস্থাত যিসকলে আবেদন কৰিছে সেই সকলো সুবিধা পাব ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থকা অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে অসমতে এই বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে আমি সম্ভৱলে মন্তব্য শুনিবলৈ যত্ন কৰিম এই মুহূৰ্তত কি কৈছে চৰকাৰী ঘৰক লৈ যি বৃহৎ ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে বাহন থাকিলেও আপোনালোকে চৰকাৰী ঘৰ পাব 3,88,000 ঘৰ এপ্ৰিল মাহতে দিব আগবঢ়াইছে মন্তব্য दो काम हम कर रहे हैं एक तो सर्वे करता है अमला मतलब रेवेन्यू का हो पंचायत ग्रामीण विकास का हो लेकिन अब हितग्राही जिसके पास घर नहीं है कच्चा घर है वो खुद भी सर्वे कर सकता है मेरी बात सुनी कि नहीं आपने खुद भी सर्वे कर सकता है नहीं कई के नाम छोड़ देते हैं कई तरह के परिवर्तन हमने किए थे जैसे टीन की पहले छत होती थी तो कहते थे इसको मकान नहीं मिलेगा तो पक्का है वो भी अब कच्चे की श्रेणी में है उसमें भी कई मकान मिले लेकिन मैं सर्वे की बात कर रहा था आपके पास मोबाइल होना चाहिए आधार नंबर होना चाहिए उस आधार नंबर को लॉगिन कीजिए और अपना फोटो खींच लीजिए अपडेट कर दीजिए वो पूरा का पूरा जो ऐप है उसमें जानकारी का जो कॉलम है वो खुल जाएगा और उसको आप भर दीजिए मतलब मेरी आमदनी 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं है जो भी शर्तें हैं उनको आप खुद भर दीजिए तो आपका सर्वे की सूची में नाम आ जाएगा कोई का नाम नहीं छूटेगा आप अपने मोबाइल से अपना स्व सर्वे सेल्फ सर्वे कर सकते हैं अब एक सवाल उठता है कि सेल्फ सर्वे करने पे अगर किसी ने गलत कर दिया तो उसका वेरिफिकेशन करवा लेंगे और दादा उस वेरिफिकेशन में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को जिम्मेदारी देंगे कि वो वेरिफिकेशन करके आए और नए सर्वे में भी 3 संशोधन किए दादा 3 संशोधन किए हमने रणजीत जी भी सुन रहे हैं नंबर 1 यहां लखपति दीदी अभियान चल रहा है पहले पीएम आवास योजना में यह तय कर दिया था कि 10,000 रुपया हर महीने से ज्यादा जिसकी आमदनी होगी उसको मकान की पात्रता नहीं रहेगी अब 10,000 रुपया तो हमारी लखपति दीदियां ऐसे ही कमा लेती है अगर इसी सीमा को मान लिया तो ये तो मकान की दौड़ से बाहर हो जाएंगी और इसलिए तय किया कि 10,000 नहीं
15,000 रुपए तक भी हर महीना कमाए तो भी मकान उनको दिए जाएंगे, सर्वे में उनका नाम जोड़ा जाएगा। एक बात और थी पुराने सर्वे में कि अगर किसी के पास मोटरसाइकिल 2 व्हीलर अगर है तो उसको मकान नहीं दिया जाएगा। अब 2 व्हीलर तो हर एक के पास है, गरीब भी मजदूरी करने जाता है तो आजकल तो मोटरसाइकिल पर बैठ के ही जाता है, तो 2 व्हीलर में तो कई बाहर हो जाएंगे। और इसलिए हमने फैसला किया है कि 2 व्हीलर जिसके पास होंगे उसको भी मकान दिया जाएगा। और तीसरी चीज, और छोटे छोटे किसानों ने क्या, उनका क्या दोष है? 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन वाले और 5 एकड़ तक अनएरिगेटेड असिंचित जमीन वाले जो किसान हैं उनको भी घर दिए जाएंगे ताकि छोटे छोटे किसानों को भी घर मिल सके। आवास प्लस की सूची से एक भी लाभार्थी वंचित नहीं रहेगा। हेमंत विश्व शर्मा जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यह चमत्कार होगा। इतने मकान एक साथ कभी नहीं बने। और इतना और बताता हूं कि इन दोनों में पैसा कितना लगेगा। आज जो मकान हम देंगे, जो मैंने घोषित किया है, उसमें 9,726 करोड़ रुपए की कुल राशि लगेगी, दोनों मिला के आज के। और जो मैंने अनाउंस किया अगले वित्तीय वर्ष के 16,159 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा गरीबों के मकान बनाने के लिए। और दादा, इसमें से 90% केंद्र सरकार का, 10% आपका, थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा, गरीबों का घर बन जाएगा, उनकी जिंदगी सफल और सार्थक हो जाएगी। आज हेमंत दा, आपको मैं फिर बधाई देता हूं। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री रणजीत जी बैठे हैं। मकान 20 लाख में से 19 लाख से ज्यादा आपने बना के गरीबों को समर्पित कर दिए। आपका अभिनंदन। और हमने पूछा जब आ रहे थे, लाभार्थी हितग्राही मकान बना कि नहीं बना, तो सबने कहा मकान बन गया। आज जिन 50,000 भाइयों ने गृह प्रवेश किया है, बहनों ने, उनको भी बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री बनने के बाद मामा भी पहली बार असम में आया है। हेमंत दा ने कहा अभी कि ये मकान तो बन गए 20 लाख, लेकिन जरूरत अभी और भी है। आप बताओ बहनों और भाइयों, हर गरीब का पक्का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो दादा कह रहे हैं अभी तो आवास प्लस की सूची में से ही कुछ बचे हैं। दादा जो बन गया अब उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन आपने जो बताया और मैंने जानकारी ली, उस जानकारी के हिसाब से अभी 7,76,000 मकान उस सूची में से और बनना है। और इसलिए आज ही 3,88,000 मकान तत्काल हम स्वीकृत कर रहे हैं असम के गरीबों के लिए। मेरे अधिकारी यहां बैठे, और ये कह के नहीं करूंगा, दादा भी आपको चिट्ठी भी देने वाला हूं, क्योंकि आपने पहले ही कह दी थी कि आओ तो कुछ लेके आना, तो लेके आया हूं। और 3,88,000 नहीं दादा, 3,88,000 अभी इसी वित्तीय वर्ष में, अगले महीने किस्त जारी कर सकते हैं आप। और उसके बाद अप्रैल के महीने में अगला वित्तीय वर्ष शुरू होते ही 3,88,000 और देके सूची को पूरा कर दिया जाएगा।